السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ تجوید سیکھیں سبق نمبر 14 میں۔ تو سبق نمبر 14 میں آتا ہے تختی نمبر 24 ادغام یارملون، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھتے ہیں، یہ بھی تنوین و نون ساکن کا ایک قاعدہ ہے۔ تنوین و نون ساکن کے قاعدے کل 4 تھے، جن میں سے چوتھا قاعدہ یہی ہے، 4 نمبر پر قاعدہ یہی آ رہا ہے۔ تو ہم اس قاعدے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا ادغام یارملون، یاد رکھیں انہیں کہتے ہیں ادغام یارملون۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، حروف ادغام جو ہیں وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم یہاں شروعات کرتے ہیں۔ حروف ادغام یاد رکھیں، حروف ادغام، ٹھیک ہے۔ تو حروف ادغام جو ہیں وہ ہیں، یاد رکھیں 6 ہیں حروف ادغام، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں وہ بھی میں یہاں پر لکھتا ہوں اور بعد میں انہیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا آتا ہے یا، ٹھیک ہے، را، میم، ٹھیک ہے، لام، پھر آتا ہے واو، پھر آتا ہے نون۔ یاد رکھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ یہ ہو چکے ہیں 6 حروف، یا، را، میم، لام، واو، نون، انہیں کہتے ہیں یرملون۔ ان کا جو مجموعہ ہے، ان کی جو مشق ہے وہ ہے یرملون۔ یاد رکھیں وہ اس طریقے سے ہے، یرملون، یاد رکھیں یہ آ چکا ہے، یا را زبر یر، میم زبر ما، لام واو پیش، لو، نون ساکین، یرملون ان کی جو ہے وہ ہے مشق، ٹھیک ہے۔ تو حروف ادغام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو حروف ادغام 6 ہیں، یرملون، ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ تنوین و نون ساکن کے بعد پتہ تو لگ چکا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، نون ساکن کسے کہتے ہیں، تو انہی کے بعد، ٹھیک ہے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا اظہار حلقی کے حرف آ جائیں تو کیا ہوگا، اخفا کے حرف آ جائیں تو کیا ہوگا، آ جاتے ہیں کیا، ان کے حروف آ جائیں، یرملون کے حروف آ جائیں تو لام اور را کو نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لام اور را اس میں سے نکالتے ہیں، لام یہ اور یہ حرف نکالتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے لے کر یہ حرف نکالتے ہیں ہم، ان میں سے را اور لام، ٹھیک ہے۔ یرملون لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے جو ہے، دیکھیں پہلے والے قاعدے تنوین و نون ساکن میں غنہ بھی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اخفا اظہار بھی ہوا کرتے تھے، مگر ان میں سے 2 کو نکالا گیا، باقی کی بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 2 کو نکالا گیا بغیر غنہ کے، ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا غنہ، ادغام تام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ادغام تام کہا جاتا ہے۔ اس کی جو مشق ہے وہ اس طریقے سے میں یہاں پر لکھتا ہوں، پھر آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے اس کی ایک مشق لکھتے ہیں جس میں آتا ہے محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ آ چکی ہے میم، میم، ہا، میم، ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، محمد، سین واو پہ سو، ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے، دال 2 پیش، ٹھیک ہے، در، را، سین و پہ سو، ٹھیک ہے، اللہ، محمد الرسول اللہ میں دیکھیں دال کے اوپر آتے ہیں 2 پیش، تو 2 پیش بھی آپ کو پتہ ہے تنوین میں سے ہیں، تو دیکھیں 2 پیش تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون، را اور لام، یرملون انہیں سب کو کہا جاتا ہے، را آیا نا، تو دیکھیں یہ را آ چکا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ آ چکا ہے کیا، را، تو جب بھی 2 پیش تنوین کے بعد کہا گیا اوپر کہ تنوین و نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، جب بھی 2 پیش تنوین کے بعد یرملون میں سے را آ جائے، آپ سمجھ لیں کہ وہاں یرملون کا قاعدہ ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ، در،
ठीक है। दुर्रसूलुल्लाह, दो पेश तनवीन आएंगे, वो क्यों आए उसको जो है वो इसलिए आए कि दो पेश तनवीन के बाद रा जो है रा आया है, और किस में से रा आया है, यरमलून के हरफों में से रा आया है, ठीक है। ईशतिर राजिया, तिर राजिया में दो जेर तनवीन के बाद जो है इसी तरीके से आता है। ईशतिर राजिया की मश्क लिखते हैं यहाँ पर, देखें ईशतिर, ठीक है, ईशतिर राजिया, ठीक है, ईशतिर राजिया, ठीक है, ईशतिर राजिया, याद रखें। दो जेर तनवीन के बाद रुफे यरमलून में से रा आया, लाम भी आ सकता है, रा भी आ सकता है, मिल्लदुनहु लाम आया, ठीक है। अब लाम का कायदे में आता है मिल्लदुनहु, मिल्लदुन, देखें तनवीन नून साकिन किस तरीके से है, मिल्लदुन किस तरीके से लिखा जाता है, मिल्लदुन हापेश हु, मिल्लदुनहु, ठीक है। नून साकिन के बाद, ठीक है, लाम आया, देखें दुन, मिल्लदुन, ठीक है, दाल दो पेश दुन, नून पेश नू हापेश हो, ठीक है, मिल्लदुन हो, देखें नून साकिन के बाद कहा गया तनवीन या नून साकिन के बाद, तो तनवीन के हमने कायदा पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो पेश तनवीन के बाद यरमलून में से जो है रा आ चुका है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मिल्लदुन में नून साकिन के बाद जब भी लाम आ जाए, कहा गया कि लाम और रा में से कोई भी आ जाए, तो लाम आ चुका है मिल्लदुन, दो इसके बाद तनवीन के बाद नून साकिन के बाद, तो नून साकिन के बाद जब भी लाम आए तो इदगाम यरमलून होता है, इसे इदगाम ताम कहा जाता है, ठीक है। और इसी का कायदा आता है इदगाम यरमलून में से बाकी कितने हर्फ रह गए हैं, 1 2 3, ठीक है, 4, या मीम बाओ नून, या मीम बाओ नून, याद रखें या मीम बाओ नून के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो चुका है क्लियर, ये था इसका कायदा, नून साकिन का कायदा था, ठीक है। तो इसके साथ साथ में आता है दूसरा कायदा, तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी मश्क करनी है, कब होगा तनवीन, कब होगा नून साकिन, ठीक है। तो दो जबर तनवीन के बाद जब भी लाम और रा में से आ जाए, लाम आ जाए तो यूं होगा, देखें लाम आ जाए तो वो मैंने बता दिया, रा आ जाए तो वो भी बता दिया। अब आ चुके हैं या वाओ मीम नून, ठीक है, या वाओ मीम नून, इनका कायदा हमने पढ़ना है, इन्हें कहते हैं यूमिन, याद रखिए। ये भी हरूफ यरमलून में से निकले हुए हरफ हैं, या वाओ मीम नून, पहले क्या था, या रा मीम लाम वाओ नून यरमलून, अब आ चुके हैं यूमिन। यूमिन का कायदा किस तरीके से है, देखें जब भी, याद रखिए वही तनवीन नून साकिन, वही तनवीन नून साकिन इसमें भी है, जब भी दो जेर तनवीन, दो पेश तनवीन, जब भी तनवीन नून साकिन के बाद, ठीक है, आ जाए कौन सा हरफ, ये आ जाए इदगाम यूमिन के, इदगाम नाकिस इसे कहा जाता है, देखें नाकिस किसे कहा जाता है, जब भी देखें हम यहाँ पर लिखते हैं, एक कोई भी मश्क ले लेते हैं, ऐ यु ता की मश्क ले लेते हैं, तो ऐ यु ता यूं लिखा जाता है, ऐ यु ता खजबर ता, ठीक है, हमजा नून साकिन आया ना, यहाँ पर तशदीद आई, ऐ यु, ठीक है, बहुत साकिन, ऐ युता, नून साकिन के बाद रुफे यूमिन के जो हरफों में से या आ चुका है, तो इसलिए इदगाम नाकिस होगा, याद रखें। ये आ चुका था ऐ युता, नून साकिन के बाद या आ चुका है, तो आपको पता है ना या रा मीम लाम वाव नून यरमलून में से ये हरफ हैं, तो ठीक है, ऐ युता खैरन यअमल मन यअमल, ठीक है, मी यौमिन ऐ यशा, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। फमन नकसा नूरन नहदी, गुन्ना भी, ठीक है, गुन्ना अच्छे तरीके से यहाँ पर करना है, ठीक है, गुन्ना जो है वो अच्छे तरीके से इसमें करना है, नून साकिन और तनवीन, नून साकिन और तनवीन के बाद याद रखें जब भी इन हरफों में से कोई भी हरफ आ जाए तो उस वक्त जो है क्या होगा, नून साकिन के बाद जब भी ये यूमिन के हरफ आ जाए तो इदगाम नाकिस होता है, यूमिन के हरफ या वाओ मीम नून इनमें से कोई हरफ आ जाए तो इदगाम नाकिस होता है, और रा और लाम आ जाए तो इदगाम ताम हो जाता है, ठीक है। रा और लाम में क्या बगैर गुन्ना के पढ़ना है, और इदगाम यूमिन के कायदे में, यूमिन के कायदे में गुन्ना करके पढ़ा जाएगा, ऐ युता मन यअमल, इस तरीके से यूं इसको पढ़ा जाएगा, याद रखें। तो अब आ जाते हैं इसी के साथ साथ दूसरा कायदा, ये कायदा मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, ठीक है। यह आ चुका था यरमलून, कुल इसके हरफ 6 थे जिनमें से 4 निकाले गए, कौन से 4 निकाले गए, यूमिन के, तो उन यूमिन में से ऐ युता इस तरीके से पढ़ा जाता है, नून साकिन को जो है वो उस वक्त में छुपाया जाएगा, ठीक है। और हाँ अगर इसके ऊपर तशदीद ना हो या ना आता हो यूमिन में से तो अन युता पढ़ा जाता, ठीक है, अन खौफ, अगर खा आता तो जाहिर हो जाता, अगर काफ आता तो कुतुब, इस तरीके से पढ़ा जाता, ठीक है। कुछ भी आता तो ता आता तो ता तो मा
अंतुमूना इस तरीके से पढ़ा जाता, तो वो इख्फा का कायदा था, यहाँ यूमिन का कायदा है। ये हो चुका है क्लियर। और इसी के साथ साथ याद रखें एक आता है रस्मुल खत, लिखने का तरीका बताया जाता है कुरान में। देखें अच्छी तरीके से आपने एक सूरत में पढ़ा होगा, कुल या अय्युहल काफिरून में आता है जिस तरीके से एक हर्फ आता है, वो आता है वला अना आबिदुम मा अबदतुम, तो वो यूं लिखा जाता है अना इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया क्लियर, अना इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, अना लिखा जाता है, अना, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन इसको अना कैसे पढ़ा जाता है याद रखें, अना इसको जो पढ़ा जाता है वो लिखने में अलग आता है, पढ़ने में अलग आता है, काफी सारे। अच्छा देखें अब एक जगह आता है रस्मुल खत में, देखें क्या तरीका है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अलिफ या वाव लिखे हुए आते हैं, याद है, अलिफ या वाव अक्सरियत पर, ठीक है। तो लेकिन इनको ये लिखे हुए आते हैं मगर ये पढ़े नहीं जाते, इन पर निशान वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जैसे लफ्ज़ अना के कायदे में कैसे पढ़ेंगे, सलाह, देखें नमाज के बारे में यूं लिखा जाता है, ये देखें ये आ चुका है नमाज, सलाह, ठीक है, सलाह, ठीक है, यूं पढ़ा जाता है। लेकिन ये वाव हमने अभी कहा ना अलिफ या वाव लिखे हुए आते मगर पढ़े नहीं जाते, ये वाव जो है ये नहीं पढ़ा जाएगा, याद रखें। जहां पर भी कुरान में आपको कहीं पर ज़कात लिखा होगा, ठीक है, कुछ लिखा होगा लिततलु अली शैइन अफा इम्मा आता, तो वो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ये आ चुका था रस्मुल खत, ठीक है। इसमें काफी सारे कायदे होते हैं, देखें अलिफ भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे सूरह ताहा में आप या को देखोगे बहुत ज्यादा या लिखे होंगे, ठीक है, तो उसमें जो ये या लिखा हुआ होता है ये इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है मगर ये पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा गया, यहाँ पर या, यहाँ पर वाव नहीं पढ़ा गया, अलिफ या वाव अक्सरियत पर आते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, ठीक है। सलात हयात, ठीक है, हयात में ता गोल निशान की आती है, या वाव आता है तो इस पर निशान बनाया जाता है। इसमें काफी सारी मश्क दी गई है, ठीक है। लिशैइन देखें किस तरीके से लिखा जाता है, लिशै इस तरीके से, हमजा दो ज़ेर इन, देखें हम अब हमजा थी यहाँ पर या लिखा गया मगर ये या पढ़ा नहीं जाएगा, लिशैइन, ठीक है, लिशैइन इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये लिखने में अलग है, पढ़ने में अलग है। यह आ चुका था रस्मुल खत का नीचे कायदा, ये तो एक आसान कायदा है जिसमें बताया गया, इतना के बताया गया कि जहां अलिफ या वाव लिखे हुए आते हैं वहां पर आपने ये नहीं समझना कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, वहां पर लिखे हुए आते हैं पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ चुका था इसका कायदा रस्मुल खत का। और वो यूमिन यरमलून का कायदा जिसमें जो है हमने रा और लाम में गुन्ना नहीं करना है, बगैर गुन्ना के पढ़ना है, और यूमिन के 4 हरफों में गुन्ना करके अच्छी तरीके से हमने पढ़ना है। इनके मश्क काफ़ी सारी हैं और बाद में जब हम क़िराअत करेंगे तो क़िराअत सीखेंगे तो उसके साथ साथ में जो है इसकी मश्क ली जाएगी, इसके बारे में बताया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सबक जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं आने वाले सबक में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।